Yes, good morning, everyone. Yes, the last class was going on a bit longer, so that's why we got late. So let me just start with where we were yesterday. Meanwhile, rest of the students join, so we'll catch up. So let's just see what we discussed yesterday was a Taylor series. We defined Taylor series. Let me just change this one to, yeah. Then we defined Maclaurin series. So Taylor series was for any function which is having any function fx which is having derivatives of all the orders in some particular interval on the real line, then we can definitely write a Taylor series expansion for that. Okay, yes, I can see your question, Jashan. Definitely, we'll be doing plenty of many examples today, right? आज हम Taylor series की बहुत सारी examples करेंगे. So just hold on. Yeah, so when you write its Taylor series, so the formula is f of a plus f dash a into x minus a plus f double dash a into x minus square by 2 factorial. Third derivative x minus a cube by 3 factorial and so on. The general term is nth derivative n factorial divided by n factorial x minus a raised to power n and so on. It keeps on going. So it's an infinite series. And Maclaurin series is nothing but Taylor series only about the point x is equal to 0. That means a is equal to 0. So that means in this, if you put a equals to 0, you will get f0 plus f dash 0 into x plus f double dash 0 into x square by 2 factorial plus f triple dash 0 x cube by 3 factorial and so on. So you can see Maclaurin series is a simple version of Taylor series because point जो है center जो है उसमें 0 लिया जाता है, that's why we get that. और जो center का significance था, this we discussed yesterday, ये a point का क्या significance होता है? This is just आपको किस पॉइंट के अराउंड उस फंक्शन का बिहेवियर चाहिए. आपको 0 के अराउंड फंक्शन का बिहेवियर चाहिए, किसी और पॉइंट के अराउंड फंक्शन का बिहेवियर चाहिए. सो दैट इज हाउ यू डू. लाइक वी डिड एन एग्जांपल when you derived the Taylor series for, or the you can say Maclaurin series for e raised to power x, we get 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial and so on. So actually this series was telling you the behavior of the function e raised to power x about the point x equals to 0, right? So let's continue with these more examples. So more detail you will find about what do I mean by center and all, right? So as I just explained you yesterday also, that what is the benefit of Taylor series is that you need to know the function and its derivatives value at just one point, and that one point is your a. ए के बाद आपके पास ए पॉइंट कहीं पे भी है रियल लाइन में, उस पॉइंट पे ऊपर सारी इंफॉर्मेशन है फंक्शन की आपके पास, फंक्शन के और उसके सारे डेरिवेटिव्स की, बिकॉज फंक्शन इज इनफाइनेटली मेनी टाइम्स डिफरेंशिएबल अराउंड सम इंटरवल इन दैट पॉइंट. Then at least in this interval you can know the all the function values around this point by its Taylor series approximation. So we will see what is the meaning of Taylor series approximation and the function values. This will come in the category of error estimation. But abhi ke liye we'll continue with Taylor series more questions so that we'll be very much efficient in deriving the Taylor series and Maclaurin series expression. After that, we'll understand in more detail about their utility in terms of the approximations, right? So I hope that is clear. This is what we discussed yesterday, and we did 1-2 examples of deriving the Taylor series. Okay, so let me just move on to the next thing. So if you just take this, the same expression again, 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial and so on. So this is another thing which I'm telling you, because yesterday also you all were asking what are the applications of Taylor series, why it is used. So one of the important applications of Taylor series is
which I even told you briefly that we know that this is actually the expansion of this. अभी हमने ये prove नहीं किया है, अभी हमने prove किया है कि ये जो है it's a Taylor series of the function e raised to power x, but ये series खुद ही e raised to power x के equal है. Equal लिखने का मतलब है कि ये series convergent है और जो इसका sum है वो e raised to power x है. तो सम ऑफ द सीरीज के बारे में अभी हमने कुछ कमेंट नहीं किया है. कन्वर्जेंस हमें देखना आता है. दिस आई टोल्ड यू यस्टरडे कि क्योंकि टेलर सीरीज भी एक पावर सीरीज है तो आप उसकी कन्वर्जेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो और हमने चेक किया था इट इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. बट उसका सम एक्चुअल में ई रेज टू पावर एक्स ही होता है. ये अभी हमने प्रूव नहीं किया है, ये अभी हम करेंगे, प्रूव बाद में आएगा. बट अभी के लिए वी नो दैट दिस इज ट्रू. So what actually is done that whenever you want to understand this function, so this is basically a function which is transcendental, or you can say this is a non-polynomial. This is not a polynomial function. So polynomials are always treated as very nice functions. You know, this kind of understanding or this kind of language which I'm using, you won't be finding it anywhere written in any book or any text, because this is not usually the undergraduate textbooks mention it like this, because this is what we study at a postgraduate level. So I'm just giving you that flavor that polynomials, they are coming in the category of nice functions. ये कोई formal word नहीं है. It is just like we say that person is very nice. So it's like that polynomial comes in the category of nice function. What do you mean by that? We mean by that whatever you want to do, you can do with a polynomial. It's a smooth function. You understand the meaning of the smooth function? Smooth function is another name for differentiable function, right? You know, if I draw this graph, these are the corners in the graph of the function. So this is definitely, even without looking at what is the definition of the function, just by looking at its graph, I can tell you this is non-differentiable at these points because there are the corners. I hope all of you are clear with this concept that graphically a differentiable function has to be a smooth function whenever there is a corner or a peak created. So at that point, tangents do not exist, or if they exist, then the left hand derivative does not match the right hand derivative. So function becomes non-differentiable there. So that's why the word is there. For differentiable function, they are smooth functions. So these polynomials are smooth functions. They are infinitely many times differentiable. What do you mean by infinitely many times differentiable? Suppose I give you a cubic polynomial, say ax cube plus bx square plus cx plus d. How many times you can differentiate it? How many times you can differentiate this polynomial? It's a question for you. Four times, three times, okay, whatever answer you are getting. You are all correct, partially correct, because what happens, see, if I differentiate it one time, so I'll get 3ax square plus 2bx plus c. Then one more time, 6ax plus 2b. One more time, it will be just 6a, and one more time, it will be 0. And once it is 0, if you further differentiate it, 0, 0, 0. Because once you get a constant, it's all the derivatives are going to be 0. So you're okay in answering that we can differentiate it 1, 2, 3, and 4 times, but this does not mean that you can't differentiate here, right? So actually, theoretically, you can differentiate this polynomial infinitely many times, right? ऐसा तो नहीं है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, डेरिवेटिव हैं बट वो जीरो है, राइट? सो वी डोंट से कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल बन गया, बट वी जस्ट से उसके डेरिवेटिव्स जो हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं बट दे आर जीरो. So theoretically we will call this polynomials, every polynomial, to be infinitely many times differentiable, right? So that's why polynomials have very nice properties. So ये जो नॉन पॉलिनोमियल फंक्शंस है उनको भी ना हम पॉलिनोमियल की टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं. सो टेलर सीरीज गिव्स यू अ मोड ऑफ दैट. सो दिस इज वन एप्लीकेशन, द वन मैथमेटिकल एप्लीकेशन ऑफ टेलर सीरीज, कि हमें जब भी
डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेंगी, रियल वर्ल्ड सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल मॉडल्स बनते हैं, उनमें बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बन जाते हैं. कॉम्प्लेक्स मींस वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं. ये e रेज टू पावर x तो बहुत अच्छा फंक्शन है, बट इसके अलावा कुछ डिफिकल्ट फंक्शंस बन जाएंगे, हाइपरबोलिक फंक्शंस बन जाएंगे. सो वी डोंट वांट टू डील विद देम लाइक दैट. सो व्हाट वी वांट, हम उनको उनके पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, राइट. सो एज यू कैन सी हियर, if I just look at one, so this is also a polynomial coming in the category of constant polynomial, right? If I include one more term, say 1 plus x, so this is a linear polynomial, or you can say 1 degree polynomial. If I include even one more term, let's include the 3 terms, so this is a quadratic polynomial, right? So I hope you are able to see the polynomials in the infinite series. So actually infinite series is the containing polynomials between them. बस जो इसको polynomial बोलते नहीं है, क्योंकि अगर एक polynomial होता है तो उसकी जो डिग्री होती है फाइनाइट, एक फाइनाइट नंबर पे जाके वो रुक जाती है. बट दिस पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट कीप्स ऑन गोइंग, बिकॉज दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज. So I hope you are able to relate. Now I'll be giving you the definition of polynomials. So polynomials are part of the series. They are not the complete series, right? So this gives us the definition, and this also clarifies us that what is the application of Taylor series. As हम error estimation का topic करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से ये clear हो जाएगा that this is happening, right? So let's move ahead towards the next definition. So this definition is Taylor's polynomials, right? So Taylor polynomials, the definition, the statement is same जो Taylor series का है, बस series में आपको पता है कि आपको infinitely many times जाना है, polynomial में आपको finitely कुछ किसी point पे रुक जाना है. So I'm just writing it quickly. Let f be a function with derivatives of order k for k is equal to 1 to up to n. तो इसमें इसने लिमिट कर दिया है किसी फंक्शन के लिए. डोंट जस्ट गो बाय द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज जस्ट वेरी फॉर्मल, ये सिर्फ बताने के लिए है. बट अदरवाइज जिस भी फंक्शन की हम टेलर सीरीज लिखेंगे, ऑब्वियसली टेलर सीरीज मींस उसके इन्फिनिटली मेनी डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, तो फाइनाइटली मेनी तो करते ही हैं, मींस, राइट. So this is just theoretically, it does not have any extra thing to talk about. It's the same thing which we discussed yesterday. So this is in some interval containing a, इसमें भी a है, as an interior point. Again telling you, no need to note it down because it's written there in the notes. So then we have Taylor's polynomial of order n generated by fx about x is equal to a. अब पॉलिनोमियल की एक नोटेशन है pnx. p stands for the polynomial, n stands for its order. I will clarify the meaning of the word order, क्योंकि यूजुअली पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, हम ऑर्डर की बात नहीं करते. हम कहते हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, एवरीबडी इज क्लियर, इज द जो भी हाईएस्ट पावर टर्म आ रही है x की, तो दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. बट ऑर्डर क्या है, तो वो आई विल क्लैरिफाई व्हेन विल बी डूइंग स्पेसिफिक एग्जांपल्स कि इसको डिग्री नहीं बोल के ऑर्डर n क्यों बोल रहे हैं. सो pnx विल बी fa plus f dash a x minus a. So it's basically the same Taylor series going on, right? The only thing is you will be stopping at a particular order, right? fna by n factorial x minus a n. या यहाँ पे small n ही है, मीन्स उसके उतने ऑर्डर तक डेरिवेटिव जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, तो उतनी पॉलिनोमियल्स हम उसकी लिख सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल आप p नॉट, अच्छा यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 भी इंक्लूड कर लो, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज आल्सो डिफाइंड. सो p नॉट मींस व्हेन यू पुट n इक्वल्स टू 0, सो n इक्वल्स टू 0 मींस जस्ट दिस टर्म, द कांस्टेंट टर्म. p1, सो p1 मींस n is 1. n is 1 मींस आपको
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है. देखो जनरल पी एन एक्स है तो दैट मीन्स आपको फाइनाइटली मेनी टर्म्स लिखनी है, बट nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक टर्म्स लिखनी है. तो पी नॉट इज 0th ऑर्डर डेरिवेटिव, सो दैट्स व्हाई इट्स जस्ट द कांस्टेंट टर्म. P1 is up to first order derivative, so it will be fa plus f dash a x minus a. This plus this one first order तक जाना है because P1 लिखा है. What will be P2? First term means the constant, the linear and the quadratic by 2 factorial. इसमें and so on नहीं कर रही हूं मैं, ये नहीं है because ये सीरीज नहीं है, ये पॉलिनोमियल है. दिस इज द सेम थिंग विच आई एक्सप्लेन टू यू. कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, आप एक एक टर्म जोड़ते जाओ तो आपको हायर ऑर्डर की, हायर डिग्री की जो पॉलिनोमियल्स हैं दिखती रहेंगी उसमें, राइट? यस, ऑर्डर मीन्स कितनी बार हमने डिफरेंशिएट किया है, दैट्स व्हाट द ऑर्डर मीन्स. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पी एन एक्स. पी नॉट, P1, P2 जितने भी आपको निकालने हैं, P3 and so on. So question में specifically mentioned होगा. So P3 will be P2 means ये तो आएंगे ही यहाँ तक, प्लस एक नेक्स्ट आ जाएगी इसमें टर्म दिस. सो पॉलिनोमियल्स का आपको कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स द सेम फॉर्मूला विच इज फॉर टेलर सीरीज. इट इज जस्ट सीरीज इनफाइनाइट तक जाती है, पॉलिनोमियल एक फाइनाइट डिग्री तक रुक जाते हैं. सेम इज इसमें आप a को 0 पुट कर दोगे तो उसको भी आप टेलर्स पॉलिनोमियल बोल सकते हो या मैक्लॉरिन्स पॉलिनोमियल बोल सकते हो. सेम सेंस इज देयर. सो लेट्स डिस्कस अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो यू विल सी देयर इज नो डिफरेंस एक्चुअली इन द क्वेश्चन. जो ऐसे टेलर सीरीज डिराइव होते हैं वैसे ही टेलर पॉलिनोमियल्स डिराइव होते हैं. सो फाइंड टेलर्स पॉलिनोमियल्स ऑफ ऑर्डर्स 0, 1, 2, 3 generated by fx about x is equal to a. So ये general statement आपको मिला है. Now we'll do different examples. So the first example in which fx is given to us log 1 plus x and a is given to be 0. तो a हमेशा given होगा आपको, या a जब given नहीं है तो वो बताएंगे कि वो मैक्लॉरिन सीरीज है. So fx is log 1 plus x. So हमें 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 मीन्स थर्ड ऑर्डर तक तो जाना ही जाना है. मीन्स थर्ड तक उन्होंने पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला है. सो P3 तक हमें निकालने हैं. सो P3 के लिए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आप कंप्यूट करोगे. सो f डैश x विल बी 1 over 1 plus x. सो सीरीज निकालने का भी यही तरीका था. सीरीज में भी जब सीरीज भी पूछते हैं तब भी हम 4-5 टर्म्स तो निकालते ही हैं, बस यहाँ पे फिक्स्ड है कि कितनी निकालनी है. सो व्हाट विल बी f डबल डैश x minus 1 by 1 plus x square. थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी minus 2 by plus 2 हो जाएगा 1 plus x cube, right? So it's 0, 1, 2, 3. थर्ड ऑर्डर तक आप जाओगे. अब इसमें आप पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दोगे. So f of 0 is log 1 which is 0. f dash 0 is 1 over 1 plus 0 which is 1. So x की जगह पे हम पॉइंट a सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन कोएफिशिएंट्स में. 1 plus 0 square, so it's minus 1, and the third order derivative evaluated at 0 is 2. Right? So let me just write the polynomials. So I'm writing here the polynomials. So p naught x will be just f0 which is 0. p1 x will be f0 plus f dash 0 into x, right? You see the expression. p1 is the linear one. तो इसमें अब a क्या है, 0 है, तो it's f0 plus f dash 0 into x. तो f0 is 0, f dash 0 हमने निकाला है 1 और into x. So this is x. p2x will be, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया था, P3 will be P2 plus third order. Similarly, P2x will be this. P2x will be P1x plus this term, second order. So आप जैसे प्रीवियस पॉलिनोमियल निकाल रहे हो उसको वहीं रखो, प्लस एक टर्म उसमें ऐड हो जाएगी, बिकॉज यही हो रहा है आपके साथ. सो P2 निकालने के लिए इट विल बी P1x plus f double dash 0 into x square by 2 factorial.
क्योंकि पहले दो टर्म्स तो आप निकाल ही चुके हो, तो उसी को सीधा ले लो. सो दैट इज x प्लस एफ डबल डैश 0 कितना आया है, -1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल. सो दिस इज sorry, x minus x square by 2 factorial, and then p3 will be p2 plus third order derivative into x cube by 3 factorial. So this will be x minus x square by 2 factorial. Third order derivative क्या है, 2. So this will be plus 2x cube by 3 factorial. मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ ऊपर. So here you will see p3x will be x minus x square by 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3. क्योंकि ये 2 है, जो ये नीचे 3 फैक्टोरियल है, सो वो 2 कैंसिल हो जाएगा. सो यू विल बी लेफ्ट विद दिस. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. 4 पॉलिनोमियल्स उन्होंने बोला था निकालने को, 0 ऑर्डर, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर. सो 0 ऑर्डर, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, हमने 4 पॉलिनोमियल्स निकाल दिए. अब सेम क्वेश्चन कैन बी एक्सटेंडेड टू, इसमें आपको सीरीज निकालने के लिए भी बोल सकते हैं कि अच्छा इनफाइनाइट सीरीज निकालो. तो इनफाइनाइट सीरीज भी इजी है, 4 टर्म्स तो आप निकाल ही चुके हो. तो टेलर सीरीज क्या होगी, अगर आप उसको मैक्लॉरिन सीरीज ऑब्वियसली बोलोगे, या टेलर सीरीज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स विल बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3. यही है आपकी, जो जितने तक पॉलिनोमियल निकाल चुके हो p3, वो 3 तक है, उसको बस अब आपको क्या कर देना है, एंड सो ऑन. Right? Now can you tell me what is supposed to be the next term? अगर मैं सीरीज को थोड़ा और एफिशिएंटली रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ कि सिर्फ 3 टर्म्स ही हैं, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टर्म? x raised to power 4 by 4, and as you can see pattern, पहली टर्म प्लस, दूसरी माइनस, फिर प्लस, तो अगली वाली माइनस होगी, तो माइनस x रेज टू पावर 4 होगी, क्योंकि पावर्स का पैटर्न देख लो 1 2 3 4, और कोएफिशिएंट्स का पैटर्न देख लो डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 एंड सो ऑन. उससे एक टर्म और लिखना चाहते हो, वो पॉजिटिव होगी x 5 by 5, उसके बाद फिर नेगेटिव होगी. राइट? ओके, सो यही होता है स्मार्टली आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है. बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर कंफ्यूज्ड, आपको पैटर्न 3 टर्म्स से नहीं समझ आ रहा है, सो यू डू द रियल calculation to actually get that. So this is the Taylor series expansion for log 1 plus x, and I hope everyone is already familiar with this series. Just like e raised to power x की series हमें पता है, 1 plus x plus this, we all are already aware with this. Similarly, ये जो series आपने मैक्लॉरिन series निकाली है log 1 plus x की, ये भी हम standard series as a इसको use कर सकते हैं. To this series also be derived. Right? So I hope that is clear to everyone. Let's move to next question. Same statement, I'm changing the function. Sin x, ये भी a is equal to 0 ही दे रही हूँ आपको, means मैक्लॉरिन ही निकालेंगे. Right? So let's do the calculation. I'll take all of your doubts in the end. Let me just complete this one because अभी हम और examples कर रहे हैं, तो आपके doubts clear हो जाएंगे. fx is sin x, yeah. So do go ahead, calculate the derivative. F dash x cos x, f double dash x minus sin x, f triple dash x will be minus cos x. एक और निकाल लेते हैं, वैसे तो 3 तक ही हमें निकालने हैं, बट ठीक है, लेट्स इवैल्यूएट वन मोर, क्योंकि साइमल्टेनियसली हम उसकी सीरीज भी निकालने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमने एंड टेलर सीरीज भी निकालना है. सो लेट्स, इफ यू कंटिन्यू दिस, सॉरी, so you can see the pattern, sin cos minus sin minus cos, sin cos, तो यहीं से मुझे पता है कि अगले दोनों डेरिवेटिव विल बी माइनस साइन माइनस कॉस. तो जो पैटर्न नजर आने लग जाए, दैट मीन्स सफिशिएंट हमने इवैल्यूएट कर लिए हैं टर्म्स. अब हम बस ए को सब्स्टिट्यूट करेंगे. f0 0, f डैश 0 1, f डबल डैश 0 माइनस, सॉरी 0 ओनली, f ट्रिपल डैश 0 माइनस कॉस 0 -1, फोर्थ ऑर्डर 0 अगेन, फिफ्थ ऑर्डर
1 again. So you can see the pattern also. 0, 1, 0, minus 1. So 0, 1, 0, minus 1. Sixth order, सेवंथ ऑर्डर. इतने लिखने की जरूरत नहीं है, बट क्लैरिटी के लिए जितने आप कम से कम, क्योंकि हमें पता है पैटर्न रिपीट ही होगा, तो यू कैन सी द टर्म्स पैटर्न 0, 1, 0, minus 1, 0, 1, 0, minus 1. तो जो इवन ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, जैसे पहला था जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव, मींस द फंक्शन इटसेल्फ जीरो है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो है, सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो है. सो जितने भी इवन ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं आपके फंक्शन के, दे आर टेकिंग जीरो वैल्यू. ऑब्वियसली वो एब्सोल्युटली जीरो नहीं है, बट ए इज इक्वल टू जीरो पे वो जीरो बन रहे हैं. और जो ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, दे आर नॉन जीरो. नॉन जीरो में भी उनका पैटर्न क्या है? 1, -1, 1, -1. तो वो सेम नहीं है, वो भी ऑल्टरनेटिवली साइन में वेरी कर रहे हैं. 1, -1, 1, -1. एनी हाउ, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, आपको इसको लिखने की क्वेश्चन में जरूरत नहीं है. अब हम सीधा इसकी सीरीज लिखेंगे और फिर पॉलिनोमियल्स लिखेंगे, राइट? सो लेट्स कॉल दिस द ऑब्वियसली मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ sin x is, okay, so series क्या होती है? f0 f dash 0 into x plus f double dash 0 into x square by 2 factorial. we know. अब हम वैल्यूज डालेंगे. अब हमें पता है f0 क्या है? 0. जितने भी इवन डेरिवेटिव्स हैं वो सारे जीरो हैं, तो 0. ये क्या है? 1. ये क्या है? 0. ये क्या है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव -1, -1. अगेन फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव 0. फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव अगेन इज +1. सो ये आपको बेनिफिट होता है जो पैटर्न आइडेंटिफाई करने का, राइट? दैट्स इट. बहुत ज्यादा है टर्म्स, ये सफिशिएंट. इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि 0 को 0 लिखने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट राइट द टर्म्स x minus x³ by 3 factorial plus x5 by 5 factorial minus x7 by 7 factorial. अब मुझे पता है अगली टर्म ये होने वाली है, उसके अगली टर्म ये होने वाली है. ये पैटर्न आपको जो है 11 फैक्टोरियल, ऑब्वियसली क्योंकि जो इवन वाली खत्म हो गई है, ऑड पावर्स बची हैं. एक्स रेस्ट पर 1 बचा है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, यू नो दैट. और उनके जो साइंस हैं ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. और 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल मीन्स जो भी पावर में है वो ही उनका फैक्टोरियल से डिवाइडेड है. सो यू इट्स ईजी टू रिमेंबर दिस सीरीज ऑल्सो. देयर इज नो कंपल्शन टू रिमेंबर दिस सीरीज, बट यू विल सी कि ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होगी, तो आपको ये ऑलमोस्ट अपने आप याद हो जाती है कि साइन एक्स की ये सीरीज होती है. जैसे e रेज़ टू पावर x की ये सीरीज होती है, वो हमें याद ही है. डिराइव करके भी देखनी पड़े तो वही आंसर आएगा. इसको भी आप याद रख सकते हो log 1 + x, क्योंकि ये ना कुछ स्टैंडर्ड सीरीज बन जाती है. इनकी फ्रीक्वेंट यूजेज के कारण इट विल बी बेटर इफ यू रिमेंबर देम, otherwise every time you have to derive them. So this is the Maclaurin series for sin x, and now we'll also need to find the polynomials. So what is p naught x? हमें if you remember the question, third order तक polynomials निकालनी है. So p naught x is just the f0. p naught x is just f0. अब f0 क्या है? 0. So the constant polynomial इसका 0 है. p1x. p1x is first two terms. So it is this plus this. So this is 0 plus x, which is x. What will be p2x? Yes, there's a question for you. Tell me p2x. Write your answers in the chat box. p2x will be this plus this plus this. p2 means starting से लेकर सेकेंड ऑर्डर वाली डेरिवेटिव तक जाना है. So 0 plus x plus 0 into x square by 2 factorial means these three terms collectively make p2, so which is again x, right? And then what will be p3?
P3 will be यहाँ तक जाना है, so that will be x minus x cube by 3 factorial. So you can see now your polynomials which we have evaluated. Yes, P3 will be x minus x cube by 3 factorial. All of you are correct. So one thing which I would like to point out here, क्योंकि यही example मैंने particularly क्यों choose किया है, I told you I will explain you the meaning of the word order. जो टेलर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में दे आर कॉलिंग देम द पॉलिनोमियल्स ऑफ nth ऑर्डर, वो क्यों है उसके लिए पहले हम प्रीवियस एग्जांपल देखते हैं जो भी हमने किया था. लुक एट दीज पी नॉट जो हमने इवैल्यूएट किए हैं इस फंक्शन के लिए. अब इस पी नॉट का ऑर्डर तो जीरो है क्योंकि वो तो बाय डेफिनेशन उसको बोल रहे हैं ना ऑर्डर जीरो. इसकी डिग्री कितनी है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस? क्योंकि हर पॉलिनोमियल की एक डिग्री तो होती है, हम बता सकते हैं. तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या होती है? जीरो. सिमिलरली P1 का ऑर्डर भी क्या है? 1. और डिग्री क्या है? डिग्री हम इसको देख के डिटरमाइन करेंगे. अच्छा ये x है, हाईएस्ट पावर x रेज़ टू पावर 1 है तो इसकी डिग्री भी 1. P2 का ऑर्डर 2 है बट इसकी डिग्री भी क्या है? 2. P3 में भी सेम, ऑर्डर इज 3, डिग्री इज ऑल्सो 3. So for this question the order and degree had the same meaning. ऑर्डर भी सेम है, डिग्री भी वही है. तो बट हम उसको ऑर्डर से ही बोलेंगे क्योंकि दैट्स व्हाट द डेफिनेशन इज. वो डिग्री उसकी क्या है? वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है. सो व्हाट वी ऑब्जर्व फॉर दिस एग्जांपल, डिग्री हैपेंस टू बी सेम एज द ऑर्डर. नाउ लेट्स मूव टू दिस एग्जांपल व्हिच वी जस्ट डिस्कस्ड. सो ये पी नॉट की ऑर्डर जीरो है, डिग्री क्या है? डिग्री भी जीरो है क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. P1x का ऑर्डर 1 है और डिग्री क्या है? 1. यहां तक ऑर्डर और डिग्री मैच कर रहे हैं. लेट्स गो टू P2 का ऑर्डर क्या है? 2 बट डिग्री क्या है यहाँ पे? 1. राइट. सो हेयर कम्स द एम्बिग्यूटी. तो इसीलिए P2x को ऑर्डर 2 बोला जाता है क्योंकि अगर वो जब पॉलिनोमियल डिफाइन कर रहे हैं वहां पे उसको डिग्री वर्ड यूज करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि डिग्री 2 के अकॉर्डिंग तो इसको सेकंड डिग्री का होना चाहिए था. एक्चुअल में वो सेकंड डिग्री तक ही जाना है बट व्हाट हैपेंड, उसका कोएफिशिएंट जीरो हो गया तो उसकी सेकंड डिग्री टर्म जीरो होने के कारण वो अल्टीमेटली एक सिर्फ फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल रह गया. राइट. सो दैट्स व्हाई order and degree cannot be always same for all the examples. In some cases they will be same, in some cases they will be different. I hope that is clear. That's why हम order word use करते हैं ताकि आप second order derivative तक जाओ. But ultimately जब वो एक polynomial निकल के आता है वो जरूरी नहीं वो second degree polynomial हो. Right? So इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कभी भी पूछेगा नहीं कोई ये point, but it is just for clarity. को पता होना चाहिए कि हर पॉलिनोमियल के साथ एक डिग्री कनेक्टेड है, डिग्री जो है एसोसिएटेड है. राइट. आई डिड दिस फॉर प्रीवियस क्वेश्चन. आई कैन एक्सप्लेन वंस अगेन. फॉर प्रीवियस क्वेश्चन वी सॉ P0x ऑर्डर 0, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल था तो इसका डिग्री भी 0 था. P1x का ऑर्डर भी 1 है, पॉलिनोमियल x है मींस डिग्री भी 1 है. P2x का ऑर्डर 2 है, ये पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा है, इसमें हाईएस्ट पावर x स्क्वायर तक जा रहा है तो डिग्री भी 2 है. सिमिलरली P3 के लिए. तो इस क्वेश्चन में ऑर्डर एंड डिग्री वर सेम. बट तो उस क्वेश्चन से देख के तो कोई भी कहेगा कि फिर ये टेलर पॉलिनोमियल डिफाइन करने के लिए उसको डिग्री ही क्यों नहीं बोल रहे, ऑर्डर का क्या मतलब है. बट इस क्वेश्चन से क्लियर होता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड द डिग्री. राइट. सो that's how it is. So we evaluated Taylor series or you can say Maclaurin series for sin x. So let's do more examples very quickly. The third example which we are going to do, अब हम सीरीज ही निकालेंगे. पॉलिनोमियल्स को अभी आपको निकालने आ ही गए हैं, वो तो जितने भी बोले आप उतनी टर्म्स तक निकाल दो. तो लेट्स इवैल्यूएट द टेलर सीरीज और यू कैन से मैक्लॉरिन सीरीज ही निकालना है आपको यहाँ पे भी. दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0. So look carefully at this function. This is not cosine function. This is not the trigonometric cosine function. Rather, this one is the cosine hyperbolic function. So this is entirely a different class of functions which is distinct from the trigonometric functions. So right now we cannot go into more details. The functions की applications बहुत हैं mathematical modeling में, differential equations में they appear very frequently. So they have many applications. That's why the reason they were defined.
they come as the solutions of many important equations, right? But यहाँ पे इसका हम एक यूज करेंगे प्रॉपर्टी that we know that, so this is something you need to remember. ये हमारे सीरीज के पहले भी आया था जब हमने इंटीग्रल टेस्ट किया था. तो I told you wherever you will be encountering these functions, you just need to remember this. Cosine hyperbolic x is e raised to power x plus e raised to power minus x by 2, and sine hyperbolic x is e raised to power x minus e raised to power minus x by 2. So this function is not difficult to handle because it can easily be represented in the form of the exponential function, right? So हमें इसकी मैक्लॉरिन सीरीज निकालनी है. तो हमने इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया, मींस इसका फॉर्मूला लिख दिया that we know that cosine hyperbolic x is e raised to power x plus e raised to power minus x by 2. अब आपको इसकी मैक्लॉरिन सीरीज निकालनी है, तो एक तो तरीका वही है जो हम तक करते आ रहे हैं, यही तरीका. सारे डेरिवेटिव्स निकालो, 4-5 कम से कम डेरिवेटिव्स निकालो, उसमें a को 0 डालो, फिर सीरीज में पुट कर दो, यू विल गेट द सीरीज. बट यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जो मैक्लॉरिन सीरीज पे एप्लीकेबल है और वो इजीली आप कर सकते हो. सिंस हमें इसका सीरीज पता है e raised to power x का, व्हाट इज मैक्लॉरिन सीरीज फॉर e raised to power x? अभी हमने पता है हमें, सो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं. 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus this and so on. So can you tell me what will be the Maclaurin series for e raised to power minus x? x की पता है, minus x की क्या है? Can anybody point out? Yes, definitely I'll upload yesterday's lecture on LMS. I just missed that, but I'll upload that. Yeah, so just replace x with minus x, you will get this. So this is the first, property which we learned here, that इसको बोलते हैं finding Maclaurin series by substitution. कि x को आपने माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया तो द सेम सीरीज वर्क फॉर यू. ये इतना ट्रिवियल नहीं होता है, यू कैन नॉट डू दैट फॉर ऑल थिंग्स, बट दिस इज एटलीस्ट हैपनिंग इनसाइड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि ये e raised to power x वाली सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट है फॉर ऑल x, सो वी कैन डू दैट. बट दिस प्रॉपर्टी इज समथिंग यू कैन यूज इन मेनी ऑफ द क्वेश्चंस. e raised to power x. अच्छा, एक और क्वेश्चन, एक और काम मैं जो आपको दे रही हूँ एज अ टू डू एक्सरसाइज. ये जो हमने sin x की मैक्लॉरिन सीरीज निकाली है, ये वाली, आप इसका कन्वर्जेंस टेस्ट करोगे, क्योंकि है तो इस बेसिकली एक पावर सीरीज, जैसे मैंने कल आपको e raised to power x का कन्वर्जेंस करके दिखाया था. दिस इज ऑल्सो बेसिकली पावर सीरीज, तो यू टेस्ट इट्स कन्वर्जेंस. So let's see how you do that, and maybe we can discuss that in the next lecture, but we need to do that. Coming back to this question. So आपको e raised to power x की सीरीज पता चल गई, e raised to power minus x की पता चल गई, so आपको cos hyperbolic की भी पता है. आपको दोनों सीरीज को क्या करना है, प्लस, फिर क्या करना है, डिवाइड बाय 2. सो दैट मीन्स जो फंडामेंटल मैथमेटिकल एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, सो आप वो कर सकते हो सीरीज के साथ. ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस व्हेन दे आर कन्वर्जेंट, बट राइट नाउ वी नो दे आर कन्वर्जेंट, सो काइंड ऑफ वी आर डूइंग इट, राइट. सो हमें इनको दोनों को ऐड करना है और फिर डिवाइड बाय 2 करना है. सो लेट्स सी व्हाट डू यू गेट ऑन एडिंग. इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या होगा, टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. x जो ऑल्टरनेटिव साइन वाली है, क्योंकि जो ऑड पावर, सॉरी ये प्लस था, जो ऑड पावर वाली टर्म्स हैं x की, वो कैंसिल होंगी, क्योंकि जैसे आपने x को माइनस x से रिप्लेस किया है तो उन्हीं टर्म्स का साइन बदला है, पॉजिटिव वाली का तो साइन बदला नहीं है. सो प्लस करने पे जो ऑपोजिट साइन है वो कैंसिल हो जाएंगे. सिमिलरली यहाँ पे x raised to power 5 by 5 फैक्टोरियल होगा, यहाँ पे माइनस x raised to power 5 by 5 फैक्टोरियल होगा, वो भी कैंसिल हो जाएंगे. सो यू कैन सी आपके पास 2, 4, 6 ऑड वाली कैंसिल, इवन वाली पावर्स बचेंगे और वो 2 टाइम्स हो जाएंगे क्योंकि आप ऐड कर रहे हो. ये भी 1 + 1 2 हो जाएगा, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस. सो दिस कलेक्टिवली इज 2 times 1 plus x square by 2 factorial plus x 4 by 4 factorial plus x 6 by 6 factorial and so on. सिर्फ इवन वाली टर्म्स हैं, 2 हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि सब में से 2 आ जाएगा. ये भी 1 + 1 2 हो जाएगा. अल्टीमेटली आपको फिर से क्या करना है, फर्दर डिवाइड बाय 2. तो जब आप इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसल्ड, राइट. सो वी गॉट द आंसर
that Maclaurin series for cosine hyperbolic x is 1 plus x square by 2 factorial plus x raised to power 4 by 4 factorial, x raised to power 6 by 6 factorial, and so on. We got the answer. So that's how easy it was. हमें e raised पर x की पता थी, उसको माइनस x से रिप्लेस किया, दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाई 2 किया, वी गॉट द सीरीज. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आप मैक्लॉरिन सीरीज कर सकते हो. बट जो फंडामेंटल तरीका है, जो ये डेरिवेटिव्स हम निकालते हैं फंक्शन का, वो इट्स ऑलवेज अ हिट, राइट. यू कैन यूज इट ऑल द टाइम. ऐसा नहीं है कि उस मेथड से नहीं कर सकते हैं, उससे भी करोगे सेम आंसर आएगा. ऐसे करने से थोड़ा इजीली सिंप्लीफाई हो गया है वो. Okay, so yeah, this is about this particular question. Let's just quickly do one more question. We have to find Maclaurin series for this function, x square into sin x. So we have just seen sin x की हमने अभी derive की है series x minus x cube by 3 factorial plus x raised to power 5 by 5 factorial. आपको नहीं याद है, एज आई टोल्ड यू, आप याद रख सकते हो. आपको नहीं याद है तो पहले आप साइन एक्स की सीरीज डिराइव करोगे, द वे वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट. वो डिराइव होने के बाद आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक्स स्क्वायर से. सो मैक्लॉरिन सीरीज फॉर एक्स स्क्वायर इनटू साइन एक्स is simply x square being multiplied with the whole series. So this is a different kind of question. पिछला वाला सब्स्टिट्यूशन था, उसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया था, फिर ऑपरेशंस लगाए थे. यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है. अब एक्स स्क्वायर की अलग से कोई सीरीज नहीं है, वो तो खुद ही एक पॉलिनोमियल है, राइट. साइन एक्स की सीरीज है, तो साइन एक्स की इनफाइनाइट सीरीज लिखोगे और एक्स स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे. सो यू विल बी गेटिंग एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज टू पावर 5 बाय 3 फैक्टोरियल plus x raised to power 7 by 5 factorial minus x raised to power 9 by 7 factorial, and so on. So that's how the series is. Yes, you can differentiate, means there is no problem. जो मैंने वही बताया पहले, जो फंडामेंटल तरीका है आपका फंक्शन का, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर साइन एक्स, वो हमेशा हिट रहेगा. एफ डैश एक्स क्या होगा? 2x sin x and then x square cos x. What will be third order derivative? फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा. So the only thing is it will be doable, it will be just little bit more calculative, थोड़ा calculative lengthy होगा, otherwise you can see. So I suggest you try with this way, and we tried with this way. So how easily we got the answer. बट यू कैन ऑलवेज डू विद दैट वे. सो आप इसको फर्दर स्प्लिट करोगे, क्योंकि जीरो तो बाद में सब्स्टिट्यूट होना है ना. डेरिवेटिव तो पहले आपको जनरल निकालना है, उसके बाद आप उन टर्म्स का फर्दर आगे डिफरेंशिएशन करोगे. आप ऐसे नहीं कि पहले टर्म्स को जीरो कर दो फिर डिफरेंशिएट करो, दैट्स नॉट पॉसिबल. सो कम से कम यहाँ पे देखो मैंने 9th तक टर्म्स लिख दिए, एक्स रेज टू पावर 9 तक. इस मेथड से अगर आपको करना है तो यू सी आपको 9th ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना पड़ेगा इतनी टर्म्स निकालने के लिए, और एटलीस्ट कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए कम से कम 7th ऑर्डर तक हमें जाना पड़ेगा. बट बाय दिस वे दिस वाज इजी. सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपको बुक में मिलेंगे, इन विच आप ये शॉर्टकट्स और ट्रिक्स यूज करके सीरीज निकाल सकते हो. लाइक अगेन आई विल गिव यू एन एग्जांपल. से यू हैव दिस क्वेश्चन cos square x. अब cos square x can be cos x into cos x. That's the meaning of cos square x, everybody knows. अब sin x की सीरीज तो आपने निकाली है. So this is also to do exercise at home. cos x की मैक्लॉरिन सीरीज आप निकालोगे, जैसे sin x की हमने निकाली है वैसे आप cos x की भी मैक्लॉरिन सीरीज निकालोगे. आएगी क्या वो मैं आपको बता देती हूँ. This will be the मैक्लॉरिन सीरीज फॉर cos of x. साइन एक्स वाली में इवन वाली पावर्स खत्म हो गए थे, ऑड वाले बचे थे. इसमें आपके पास जो है ऑड वाले पावर्स खत्म हो जाएंगे, इवन वाले बचेंगे, और इसमें भी ऑल्टरनेटिवली प्लस नेगेटिव. सो दैट्स अ टास्क फॉर यू, यू इवैल्यूएट दिस. अब अगर आप इसको यूज करते हो इस क्वेश्चन में, दो सीरीज की क्या आ जाएगी? मल्टीप्लीकेशन. एंड सीरीज मल्टीप्लीकेशन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इट्स अ समथिंग विच नीड्स टू बी टॉट. क्योंकि अगर मैं आपके सामने ये लिखूं से
1 plus x into 1 plus 2x plus x square. Polynomial into polynomial means वो infinite नहीं है, they are finitely many terms, right? So all of you can evaluate this. 1 will be multiplied with first 1, 2x and x square. Then x will be multiplied with 1, 2x and x square. All terms are going to be added and it will be a answer will be a, I know, a cubic polynomial. Because there are finitely many terms, so you can do the multiplication howsoever lengthy it might be. But since यहाँ पे जो multiplication हो रही है, they are infinite series, so you do not know how you multiply. So it's not trivial. ऐड करना इजी होता है क्योंकि हम टर्म बाय टर्म एडिशन कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया था. एडिशन एंड सबट्रैक्शंस आर इजी, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विद स्केलर्स इज इजी. बट सीरीज मल्टीप्लिकेशन एज सच इज अ डिफरेंट थिंग, इट कैन नॉट बी डन ट्रिवियली. सो होता है, वो क्या है हम मे बी हम डिस्कस करेंगे सीरीज मल्टीप्लिकेशन भी. आई जस्ट नीड टू कंफर्म वेदर इट इज इन द कोर्स और नॉट, बट दैट मेथड इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. दैट इज व्हाई द ऑल्टरनेट वे इज you replace it with this. And now ये है cos 2x. तो cos x की सीरीज आपको पता है, इसमें you replace x by 2x, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हो. तो रिप्लेस x by 2x, आपके पास सीरीज आ जाएगी cos 2x की, उसमें 1 ऐड करना है, फिर ओवरऑल जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है. तो ये इजी टेक्निक है, रादर देन आप cos x की और cos x की सीरीज को आपस में मल्टीप्लाई करो. वो सीरीज मल्टीप्लीकेशन इज नॉट डिफाइंड, आपको अभी पता नहीं है वो कैसे करना है, और इवन इफ यू विल डिस्कस दिस, सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो इट्स कमिंग वेरी हैंडी दिस अप्रोच, कि जो भी ऐसे फंक्शन आते हैं तो हम उनके लिए सिंपलर फॉर्मूला ढूंढ सकते हैं जिनकी सीरीज हमें ऑलरेडी पता है या जिनकी सीरीज डिराइव करनी आसान है, राइट? सो ओके, see if you will be using cos square x is 1 minus sin square x, so again sin square के लिए भी फिर आपको वही रहेगा ना, sin square x के लिए भी you will have the same issue जो cos square x के लिए है, right? So that's why that approach is not suggestible. Okay. Right. So rest of the questions I have answered. Today is all the questions which are in your chat box. So बाकी जो मैंने टास्क दिए हैं आप ये कंप्लीट करो. मैं क्लोरीन सीरीज इसकी डिराइव करो और ये करो जो मैंने दिया है. Yes, Uday, you have a doubt? यस मैम. मैम ये टेलर और मैक्लेरन सीरीज के अंदर मैम जिस फंक्शन की हम टेलर सीरीज निकालते हैं, वो सीरीज उसी फंक्शन पे क्यों कन्वर्स कर जाती है बार बार? हर केस में ऐसा हो रहा है. हाँ आएंगे, इसी पे आएंगे, ये कल डिस्कस होगा. मींस नेक्स्ट लेक्चर में हम एरर एस्टिमेशन करेंगे ना, तभी मैंने कहा था वो अभी नहीं हमने पढ़ा है, वो ट्रिवियल नहीं है, वो प्रूव करना पड़ता है. लेकिन ये तो है ना कि ऐसा होता है. हाँ ऐसा होता है. और मैम टेलर पॉलिनोमियल टेलर सीरीज के कंपोनेंट्स है ना? हाँ हाँ, पॉलिनोमियल उसको पॉलिनोमियल ऐसे बोलते हैं ना, जैसे पॉलिनोमियल बोलिया मींस फाइनाइट है, मींस उसकी कुछ डिग्री है, तो आप अकेला पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे, आप बोलोगे you will ask give me Taylor polynomial of sin x, then I will ask okay you tell me the order, right? So you have to tell me कितने order की polynomial you are looking for. But if you ask me, हाँ, वो सीरीज का सेक्शन ले लेना है, उतना order derivative वाली term तक का सेक्शन ले लेना है आपको. हाँ ओके मैम. But if you ask me give me a Taylor series, then you don't mention anything, I'll just give you the series, right? क्योंकि series में पता है वो infinitely many terms हैं. Okay, although we are done with time, I can quickly take. Okay, Ariman, your question. मैम मेरा एक डाउट था कि वो cos square x के क्वेश्चन में हम आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं. हाँ, whichever identities you know, you can use that. Okay, that's all for today. Rest of the questions please save for tutorials and the next class. Thank you. I'll be uploading today's and as well as the yesterday's lecture on LMS.